Hello, good afternoon. So today, after a very long time, we are meeting and I'm making a video. I've received many requests regarding answer writing, and so I'm sharing my own technique, the things which I've done, and how I have improved my answer writing over a course of 1 year. It was during essentially the COVID period that I had improved my answer writing, and these were the six major pillars or three major pillars of my answer writing. These three. So when I'm talking about answer writing, we want to have a very good answer or the best answer. If I may ask you, what is a good answer? What is a good answer? A good answer is one which is to the point according to the need of the question, which the evaluator can easily understand, and it has good content, right? These three things. So it is presentation, structure, and content. So the mistake which we do most of the time is that we only focus on reading. That is building this content only. We forget other 2 points. This is the mistake we do. We only focus on content, but only content cannot give you a good answer. Without content, you cannot write a good answer. But only content, no. You need to focus upon these two very importantly. What is presentation? What essentially is presentation? I'm showing you an answer. This is presentation. You're able to see my answer completely. This. And there are bad answers also which you yourself will not like to read. But it's very verbose. So if this is your answer sheet, this big, like 50 pages in one answer, and they're all just verbose. आपको मजा आएगा क्या? So presentation is something which there is some diagram, there is some flow chart, there is some other thing, there is good highlightation. I don't have to go deep into the answer to find the answer, right? This is the presentation. Then comes structure. Very important, which we almost forget many a times, especially the first timers. A question has many parts, some very obvious, some hidden. A question always has 90% times has parts, hidden or obvious. We need to address all those parts, hidden and obvious both. Like this, take this question. The water crisis that India is experiencing today cannot be solved only with the efforts to augment the supply. Demand management holds the real key to sustainable solution. Okay? This. How do you write an answer? The basic question is about, if you see the question is about demand management, right? We all will write about demand management, but are we focusing on this? Is this a question? No, it is a statement. We need to just discuss. And this is the major point of discussion. But in that major point, we often tend to miss this point. We forget the supply part. We only focus on demand. That is wrong. This is very important. We need to give it a space, not not a very big space, but at least some space. Then what would be the introduction? Introduction would be this: water crisis in India. You need to explain what water crisis India is experiencing. Otherwise, where will you show? Right? So this will become an introduction. This will become your filler page for 1 page. This will take you 2 pages because it's 15 marker. It will take 2 pages. Right? So this is the way you cut your answer. Every question has some parts. You need to identify those parts and give adequate weightage, not equal, adequate weightage to each part. If there is some question, suppose what is soil erosion? What are the factors and how can we eliminate? 3 parts. 15 marker. You cannot give 1 page to soil erosion. You cannot. You should give only introduction, then causes and ways to structure. Very important. Then comes content. Content again has various diversities. Like it would have examples. It would have good arguments, like points, good bullet points, right? These things are there. Okay, now this is your answer writing. आपने लिख लिया. आप evaluate कैसे करोगे? This is your evaluation. This. मतलब किन से कंपेयर करके evaluate करोगे? मॉडल आंसर
you will not find a bad answer than a model answer. The worst answer you can get is model answer. But I'm saying why model answer? Because it will give you content. Model answer is good for content only, nothing else. Model answer will give you very good pinpointed content. So go through model answer. Others answer, very very important. Others में आपका group आ जाएगा. It could be a group, it could be your online peer group, it could be others answer, others copies which are available online, like TLP insights पे जो copy मिलती होती है. It could be toppers answer, right? Read others answer on the same question specifically. देखो what they have done and you have not done. देखो how they have innovated. So this is very very important. Others answer I used to read when I was writing my first mains. I used to read Akshat Jain's answer, Shreyansh answer, the toppers at that time. मैं उनके आंसर पढ़ता था और मैं देखता था कि उनके और मेरे आंसर में डिफरेंस क्या है. मेरे को उनकी कॉपीज मिल गई ऑनलाइन. आई गॉट आंसर कॉपीज ऑफ अक्षत जैन ऑनलाइन फ्रॉम विजन. I downloaded that. I wrote the answer on the same question, although it's 1 year old, but I wrote the answer on the same question, the whole paper. And then I saw, and then I compared what I have not done and Akshat has done. How there is difference between these two things. नहीं. So you need to see. So I used to compare, and then I used to realize what are the good things which the topper AR2 at that time has done. And then the last point, very important point, is your own answer, without which everything is waste. Your own answer. Read your own answer. See what are the strong points in your answer. See what are the shortcomings in your answer. Read your own answer. Very important. Always read your answer. Also, when you're reading your answer, you need to focus on certain points which are like these. Okay, I'll come to this just a minute. I'll come back to this. Read your own answer. If there is some good point, say you got a good point in model answer on some other answers, which is not there in an answer, which you think should be there in an answer, what you do? Take a green pen, take a pen of some other color, which is very striking. Red pen, green pen, yellow pen, and write it here in the notebook, like upper side में कहीं पे. ताकि when you're going through your answers, your answer copy would be very thick. You will not be going through your own all the answers during revision. So when you're going through a copy like this, you just see the important things which are mentioned there, and your revision is done. Okay. Coming to answer evaluation, your answer brevity is very important. What do you mean by brevity? So each line which you're writing in your answer should add some value. Should add some value. It should not be faltu ki line. Very faltu lines which we do is in introduction. Question is on Jaipur is a pink city. I'll take this. Where is Jaipur historic city founded in 18th century has been recently added to the World Heritage Site. ठीक है, introduction ये question है. Write a short note. What introduction we write? हम कितना गंदा introduction लिखते हैं, but we write Jaipur is a capital of Rajasthan, founded in 18th century and it has recently been included in World Heritage Site. अरे ये सेम चीज क्वेश्चन में मेरे को दे रखी है, सेम की सेम. मैंने कुछ वैल्यू ऐड करी नहीं. वेरी बैड इंट्रोडक्शन. नो वैल्यू एड. सच इंट्रोडक्शन मत लिखो. सेम व्हेन वी राइटिंग पॉइंट्स, जैसे मैंने लिखा कि पॉलिसी को हाउ कैन वी मेक बेटर पॉलिसी. दिस इज अ क्वेश्चन, राइट? वन पॉइंट आई रोट स्टेक होल्डर कंसल्टेशन. सो इट्स अ पॉइंट इन माय आंसर. स्टेक होल्डर कंसल्टेशन मैंने लिखा, राइट? अब मैं इसका क्या लिखता हूँ, एरो डाल के, वी शुड कंसल्ट द रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स व्हाइल मेकिंग द पॉलिसी. We should consult the relevant stakeholders while formulating the policy. 10 वर्ड मैंने लिखे जो कि कुछ काम के नहीं हैं. स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, ये 2 वर्ड से सफिशिएंट समझ आ गया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं. दिस इज कंप्लीटली वेस्ट द 10 वर्ड्स जो जगह भी ले रहे हैं, एनर्जी भी ले रहे हैं, टाइम भी ले रहे हैं. दिस इज ब्रेविटी. सो ओनली उससे अच्छा लिखो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन. अगर आप लॉ के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि एक राजस्थान गवर्नमेंट का केस है, वो लिख सकते हो. नहीं पता, कोई बात नहीं. आप सिंपल फार्मर लॉज का एग्जांपल दे सकते हो विदाउट, मतलब दिस यू आर डूइंग
आप इसमें कंटेंट डाल रहे हो ना, फार्म लॉज में कंसल्टेशन नहीं हुआ इसलिए प्रोटेस्ट हुआ, विदाउट कंसल्टेशन देयर इज प्रोटेस्ट ड्यूरिंग प्रोटेस्ट ऑन फार्म लॉज, राइट? तो ब्रीविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो फालतू की जगह टाइम स्पेस लेते हैं, बच्चे बोलते हैं मेरा आंसर बहुत बड़ा हो रहा है, टाइम नहीं बच रहा है, अरे इसलिए नहीं बच रहा है ना, फालतू की चीजें लिख रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कांट एम्फसाइज ऑन इट मोर। एम्बिगुअस स्टेटमेंट मत लिखो जिनका कुछ बेसिर पैर ना हो, जिसका कुछ सिर पैर ना हो, कुछ भी बोल रहे हो, स्पेलिंग ग्रामर पे ध्यान दो थोड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन मैंने इसको बता दिया है, एवरी क्वेश्चन हैज सम हिडन पार्ट्स, ऑब्वियस पार्ट्स, वर्क ऑन दैट। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, आई कम टू दैट, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड लिमिट, ये बच्चों को बहम होता है, गलत फहमी होती है। ऑलवेज राइट 10% लेस ऑफ द वर्ड लिमिट, 10% रूल। If the word limit is 150, you should not write more than 130. If the word limit is 250, you should not write more than 220. कम लिखो, काम का लिखो, टाइम दिस, ठीक है? ठीक है, सो आई एम कमिंग बैक टू दिस। सो दिस मैंने ये मेजर चीजें कर ली है, दिस इज द सार, क्या कहते हैं, समरी ऑफ माय होल 1 year ऑफ इंप्रूवमेंट इन आंसर राइटिंग। दिस स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। मैक्रो लिस्टिंग ऑफ सिलेबस, हर एक पॉइंट, हर एक सिलेबस के पॉइंट्स बना लो, उन्हें थोड़ा देख लो, इट विल हेल्प यू गो थ्रू दिस सिलेबस। माइक्रो लिस्टिंग एक बार पढ़ लो, यू विल फाइंड दिस माइक्रो लिस्टिंग ऑफ सिलेबस ऑनलाइन, बहुत सारी कोचिंग निकाल दिए हैं, जस्ट गो थ्रू इट, इट विल हेल्प यू अलॉट आंसर लिखने में, कंटेंट बनाने में, इट विल हेल्प यू। और आपको खुद पता चल जाएगा विच ऑल थिंग्स यू नीड टू स्टडी मोर। अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, वेरी रेलिवेंट पार्ट्स इन क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। क्वालिफाइंग वर्ड्स जैसे इलिसिट में थोड़ा बता दो, क्रिटिकल एनालाइज में दोनों पार्ट्स दे दो, अपना ओपिनियन दे दो। एक्स फैक्टर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ तो ऐसा लिखो जो आपके आंसर में अलग हो, जो बाकी लोगों ने ना लिखा हो, वही आपको औरों से ज्यादा नंबर दिलाएगा। जैसे अथॉरिटीज, जजमेंट्स, कोई ऐसा कीवर्ड, जैसे ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन है तो वोलमोटाइजेशन, ग्लोकलाइजेशन, ठीक है, ऐसे कीवर्ड्स डाल दो। इस ARC रिपोर्ट से तो लिखो अपने आंसर में, फ्लो चार्ट डायग्राम बनाओ, and जब यू आर डूइंग, जैसे कीवर्ड डाल रहे हो आप, ग्लोकलाइजेशन लिख रहे हो, ग्लोकलाइजेशन, उसे बॉक्स बना के हाईलाइट करो, मतलब उसे दिखाओ, सामने वाले को दिखना चाहिए, दैट इज प्रेजेंटेशन। ग्लोकलाइजेशन वर्ड इज कंटेंट, मेकिंग बॉक्स इज प्रेजेंटेशन, पुटिंग इट इन रेलेवेंट जगह, बीच में डाला, ऊपर डाला है, कंक्लूजन में डाला, दैट इज स्ट्रक्चर। मैं ग्लोकलाइजेशन को हमेशा कंक्लूजन में डालता था, ग्लोबलाइजेशन के कंक्लूजन में, ग्लोकलाइजेशन में डालता था, ठीक है। तो अगेन गोइंग बैक टू दिस, इन तीनों का यूज करो अच्छे से। क्लोज सेंटेंस, बी पोलाइट, मतलब कभी कभार हम ऑफेंसिव हो जाते हैं, मतलब थोड़ा रूड, मैंने अपने लैंग्वेज में देखा है, वो मत करना, डोंट पुल द रीडर कि डोंट यू नो, एज यू आर अवेयर, ऐसा बिल्कुल मत लिखना, एज यू आर अवेयर, एज वी ऑल नो, अरे पागल हो क्या, ये सब मत लिखना। यूज रीइंफोर्समेंट स्टेटमेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आप पॉजिटिव 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 लिख रहे हो, आपको नेगेटिव लिखना है, ठीक है, और एक ही पॉइंट नेगेटिव लिखना है, यू डोंट, मतलब नहीं, अलग पॉइंट, अलग हेडिंग नहीं बना सकते, हेडिंग बना सकते हो तो ठीक है, वो तो स्ट्रक्चर का हो जाएगा, बट हेडिंग नहीं बना सकते। हाउ विल यू डू, यूज दिस वर्ड हाउएवर, हाउएवर, दिस इज आल्सो द केस, इन एडिशन टू द पॉजिटिव पॉइंट्स, राइट? आपको किसी एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज करना है, फर्दर मोर, यूज वर्ड्स लाइक दिस, फर्दर मोर, नेवरदलेस, हाउएवर, ठीक है, दीज आर सम हुक्स व्हिच आई एम टेलिंग यू व्हिच कैन बी यूज्ड। ये मैं बता चुका हूँ, इंट्रोडक्शन में आना है, इंट्रोडक्शन आ गया। These 6 are the ways to, ये close, this is not a closed list, but this 6 are the good ways to do introduction. You can describe an event, जैसे description is this, ये जो है जलियांवाला बाग का क्वेश्चन था, I've described जलियांवाला बाग, what is it, ठीक है, this is description, you can introduce like this. Data, if there is a question of water scarcity, you can just give data of water scarcity, या water scarcity, water stress, and India is here. So you have given data, you have made a flow chart also, chart also छोटा सा, you can start by data. You can give authorities like ARC, some other authority, some other committee, which you can start with. Origin background बता दो, जैसे यहाँ पे background बता दिया जयपुर वाले में, कि जब जय सिंह। अब देखो ये इस वाले क्वेश्चन, इस वाले इंट्रोडक्शन में, in this question, this is not a good introduction, this is not a good introduction.
जयपुर ऑल्सो, तो इसमें मेरे कीवर्ड्स क्या, पिंक सिटी, फॉलोड दिस, शेखावटी रीजन, ठीक है चलो, एंड हैज बीन हिस्टोरिक, ठीक है, कुछ इतना खास नहीं है, बट बैकग्राउंड में लिया, ठीक है। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, इसका ये जो मैंने लिखा है ना, हैज बीन हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, ये बेकार है, ये ब्रेविटी, अगर मैं ब्रेविटी का प्रिंसिपल यूज करूँ, ये मेरे को नहीं लिखना चाहिए, मेरे को यहाँ पे खत्म कर देना चाहिए। ये जो आखिर के 3-4 वर्ड्स हैं ये बचेंगे, ये छोटी छोटी चीजों पे आपको काम करना है, तभी आपको देखो 3-4-6 वर्ड्स मेरे कट गए यहाँ पे, हर एक आंसर में 6 वर्ड्स कट रहे हैं, कितने हो गए, 6 × 20 120, मतलब कितना बचा, 120 वर्ड्स, मतलब 7 मिनट, आपने 7 मिनट बचा लिए, और कुछ पॉइंट्स ऐड हो नहीं रहा है ऐसे, ठीक है। ठीक है, कोटेशन जैसे ये है, वाटर वाटर एवरीवेयर, नाउ अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑन, दिस इज अ क्वेश्चन ऑन वाटर, ठीक है, वाटर क्राइसिस, आई हैव यूज्ड दिस कोटेशन, बट दिस कोटेशन नॉट इनफ, मेरे को इंट्रोडक्शन थोड़ा देना, बट समझाना पड़ेगा थोड़ा, इंट्रोडक्शन बस बेसिकली टोन सेट करता है, समझाता है आप क्या लिखने वाले हो, तो ठीक है, ये भी रेलेवेंट, ये लिखना पड़ेगा मेरे को, बट इट इज एडिंग अ गुड टोन, गुड नेचर, गुड वाइब टू द आंसर, ठीक है। तो इन ये एक बार देख लीजिए, 6 चीजें थोड़ा अपने ध्यान में रखिए, हेल्प करता है आपको, ठीक है, इन 6 से आप कभी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे, और ये थोड़ा एग्जांपल्स मैंने इसके डाल दिए, ये फैक्ट्स है जो मैं आपको बताया, वाटर वाला एग्जांपल दिया था, वाटर लेवल, स्कार्सिटी, स्ट्रेस एग्जांपल। नाउ दिस इज द वे टू कंक्लूड, ऐसे जैसे वो 4 थे, 4-5 चीजें ये हैं, इसमें एक ऐड करूंगा मैं कीवर्ड, जैसे कीवर्ड का पहले ही बता दूं, आईआर का अगर कोई क्वेश्चन है, मैं उसे कंक्लूड करता हूँ वसुदेव कुटुंबकम, अब अगर आईआर का क्वेश्चन आएगा, आप G20 से कंक्लूड कर सकते हो, सिंपल, बढ़िया आंसर बनेगा, बढ़िया कंक्लूजन बनेगा। सेक्युलरिज्म का क्वेश्चन आता था, सर्वधर्म संभाव मेरा आंसर था, जब प्रिंसिपल डिस्टेंस वो तो ऊपर लिखता था मैं जनरली, सर्वधर्म संभाव मेरा कीवर्ड था कंक्लूजन, बढ़िया आंसर कंक्लूजन बनता था। वे फॉरवर्ड से कर दो, मतलब लिख रहे हो कि क्या क्या होना चाहिए, सिंपल वे फॉरवर्ड से कर दो, फाइंडिंग से कर दो, किसी रिपोर्ट का लिख दो, अशोक दलवे कमेटी, डबलिंग द फार्मर्स इनकम, ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचना है, तो फाइंडिंग्स कर दो, समरी दे दो कि आपने क्या क्या, ठीक है, तो मुश्किल होता है। करंट लिंक, करंट लिंक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं, क्वेश्चन था, हवाई विजयनगर एम्पायर आर्किटेक्चर इज बेटर देन इट्स कंटेम्परेरी फॉर्म्स, आर्किटेक्चर ऑफ विजयनगर एम्पायर इज बेटर देन द अदर आर्किटेक्चर ऑफ कंटेम्परेरी टाइम्स, ठीक है, मैंने पूरा लिख दिया, चोला वगैरह वगैरह एक्सप्लेन कर दिया, दिखा दिया, अच्छा विजयनगर बेटर बेटर है, अच्छा। कंक्लूजन मेरा क्या था, सोचिए, थोड़ा सोचिए, करंट लिंक से कुछ कनेक्ट कीजिए विजयनगर को, आर्किटेक्चर को, मेरा कंक्लूजन था दैट the supremacy of vision, the significance of Vijayanagar Empire architecture can be seen that the uh, Hampi Rath has been given the place on the reverse side of new 20 rupee note. कनेक्ट कर पाए? सिमिलरली ऐसे राज्यसभा में क्वेश्चन आया, मैं किसी का आंसर पढ़ रहा था, मैं उसे बताया ऐसा कंक्लूजन लिख, राज्यसभा की वाइब्रेंसी रेलेवेंस के ऊपर क्वेश्चन था, रेलेवेंस ऑफ राज्यसभा, ऐसा क्या फालतू का कंक्लूजन लिखा है, लिखना ये कि दी the peacock style of the newly inaugurated Rajya Sabha has a peacock style which signifies its vibrancy and relevance to the Indian Constitution. मतलब कनेक्ट करो ना इन चीजों को, मैं थोड़ा इतना अच्छा इलस्ट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, बता नहीं पा रहा हूँ, बट हाँ यू कैन कनेक्ट, ठीक है। फिर एक बार ये देख लेना, ये ठीक है जी, ये कर लेते हैं। सब हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे आता हूँ, पॉइंट्स जनरली पॉइंट्स में लिखिए, पूरा सेंटेंस मत लिखिए, काम की चीजें लिखिए, फालतू के वर्ड्स मत लिखिए, ब्रेविटी फॉलो कीजिए, एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इट एड्स वैल्यू टू योर आंसर, इट एड्स अथॉरिटी टू योर पॉइंट, मतलब आपने कोई पॉइंट लिखा है, मान लीजिए कि आपको डुप्लीकेशन हटाना है, एग्जांपल लिखिए जैम ट्रिनिटी, लिखिए, मतलब ऐसे एग्जांपल्स लिखिए जिनमें वैल्यू हो, कीवर्ड्स वही, ये तो वो हो गया कि उन्हें कैपिटल लेटर में लिखो, बॉक्स बनाओ, फिर दिखाओ सामने वाले को, ठीक है, ये हो गया एग्जाम। इंपॉर्टेंट सब हेडिंग, मैं आपसे पूछता हूँ, हाउ कैन यू मेक इंडिया, GS2 का क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि स्वच्छ भारत को बेटर कैसे करें, स्वच्छ भारत अभियान को, ठीक है, हर एक के पास बढ़िया आंसर है, बढ़िया कंटेंट है, मैं इसमें क्या करूंगा, सब हेडिंग बनाऊंगा विच इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पे ध्यान दूंगा, सब हेडिंग में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हमने क्या चेंज करना चाहिए,
पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में क्या चेंज होना चाहिए, पॉलिसी फीडबैक में हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने, ठीक है, मेन हेडिंग मेरी क्या बनी, स्वच्छ भारत में चेंज, उसका एक सब पॉइंट, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, चेंजेस इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन 3 पॉइंट, चेंजेस इन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन 3 पॉइंट, चेंजेस इन पॉलिसी फीडबैक 3 पॉइंट, 9 पॉइंट टोटल हो गए। और एक स्ट्रक्चर आ गया, क्या शानदार लगेगा मेरा आंसर। फीमेल को फीमेल को आगे, वुमेन को एम्पावर कैसे करें, ठीक है, हर एक का बेस्ट आंसर आएगा, कंटेंट कमी नहीं है। मैं क्या करूंगा, सोशल 2 पॉइंट, इकोनॉमिक 2 पॉइंट, पॉलिटिकल 2 पॉइंट, टेक्नोलॉजिकल 2 पॉइंट, लीगल 2 पॉइंट, 10 पॉइंट हो गए। कितना अच्छा ऑर्गेनाइज करा मैंने। ठीक है, ये नहीं करना आपको। मैं क्या करूंगा, वुमेन, मैं टाइमलाइन बना दूंगा, मतलब वुमेन की टाइमलाइन बना दूंगा। गर्ल चाइल्ड मतलब इन्फेंट, जिसमें फिटिसाइड इन्फेंटिसाइड, ठीक है, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन हेल्थ वगैरह आ जाएगा। मैरिड वो, फिर अडल्ट जिस मैरिज की बात होगी, इकोनॉमिक वर्क काम करने की बात होगी, एम्प्लॉयमेंट की बात होगी। फिर ओल्ड एज में, इसमें शेक्सपियर के 7, शेक्सपियर की जो 7 लाइफस्टाइल है ना, उससे मैं रिलेट कर दूंगा, वो दिखा दूंगा मैं। जब बूढ़ी होगी तो फेमिनाइजेशन ऑफ, बूढ़ों का, ज्यादा लड़कियां बूढ़ी हो रही है ना, वैसा उस पे बात करूंगा मैं, उनको जेनेटिक केयर चाहिएगा, उन चीजों की बात करूंगा। तो आई सेइंग शोइंग सब हेडिंग्स, मैं कैसे सब हेडिंग्स बनाऊंगा, मैं कैसे तोड़ूंगा। एंड देन दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ डायग्राम आप इन्हें यूज कर सकते हैं। टाइमलाइन तो मैं आपको बताया, आईआर में टाइमलाइन बना सकते हो, ठीक है। समथिंग, सम एग्जांपल्स जस्ट आप देख लीजिए, मैप वैप मैंने कैसे यूज करा, ये सब आप देख लीजिए, माइट हेल्प। मतलब कैसे मैंने इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन दिया है, क्या क्या करा है, ठीक है, मैप आ गया, इंट्रोडक्शन आ गया, ये मैंने, इसे मैं बोलता हूँ फिलर। इस चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिए, इस चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिए, आई कॉल दिस फिलर। क्वेश्चन अगर आप देखिए, क्वेश्चन यही है, ठीक है, क्वेश्चन अगर आप देखिए, इसकी जरूरत नहीं थी जो मैंने बनाया है, बट ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है। इसको मैंने जगह कितना दिया है, बहुत कम, मतलब 3 लाइन के बराबर जगह दिया है, 3 लाइन से कम ही जगह दिया है। और उसमें मैंने पॉइंट्स, एक डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर दिए। तो इट इज एडिंग वैल्यू टू द आंसर, नॉट एसेंशियली रिक्वायर्ड, नॉट एसेंशियली आस्क्ड अबाउट प्लांटेशन, मैं लिखता नहीं लिखता फर्क नहीं पड़ता, बट ये वैल्यू ऐड कर रहा है ना। तो दिस इज फिलर। तो फिलर को तो ऐसा रखिए जहाँ पे आप उसे कम जगह दो, वो आपके आंसर को सब्सटेंटिएट करे, बट ऐसा ऑब्वियसली पूछा ना गया हो, ठीक है। देखिए जैसे इसमें फिलर नहीं था, ये बस आप देख लीजिए, जैसे डायग्राम वायग्राम हो गया, मैंने कैसे हेडिंग्स दिए, हाँ मैं 2 पेन यूज करता था, ब्लैक और ब्लू मैं कर पाता था। ये मैंने हेडिंग्स कैसे दिए, मैंने कैसे 2 लाइन बनाई है, तो ये जस्ट, ये सामने सामने दिख चमकना चाहिए ना, इसलिए, ठीक है। देखो कैसे वेबर इंडस्ट्री को मैंने कैसे कैपिटल में लिख के बॉक्स बनाया है, चैंपियन सेक्टर कैसे करा है, ये मैंने दिखा रहा हूँ बस, मैं कैसे कैसे करता था, सनराइज सेक्टर को बॉक्स बनाया है। अगेन दिस इज वेरी गुड आंसर ऑफ माइन, एडवांट ऑफ विंड ऑफ चेंज। वो जो आपको बता रहा था, सब कैटेगराइजेशन, लीगल सोशल, ऐसे में हर आंसर, बहुत आंसर में करता था। 80% आंसर में मेरे से सब कैटेगराइजेशन आपको मिलेगी, 80% में। नॉट अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन, आई वुड से बेटर हो सकता था। फिर ये पॉइंट मेरा रह गया बाद में, तो मैंने सब कैसे हाईलाइट करा, ठीक है। ये भी, ये अगेन अ गुड आंसर ऑफ माइन। ऐसे में हाईलाइट लिखता था अपने कमेंट्स साइड में, जस्ट टू, ये एक मेरा बहुत अच्छा, ये इस वाले आंसर में पॉइंट था। आप ही पढ़ना, खुद देखना, आपने नहीं लिखा, शायद मिस करा हो। जस्ट शोइंग सम मैप्स और डायग्राम्स टू यू, वेरी सिंपल डायग्राम्स, स्तूपा एंड मैन का कैसे रेलेवेंस इंटरप्ले, सिंपल डायग्राम्स व्हिच कैन बी मेड इन आर्ट एंड कल्चर, वेरी सिंपल डायग्राम जो मैं बनाया हूँ। ये वाला डायग्राम आप, ये सब मैं बनाया हूँ अपने आंसर में, बनाया हूँ मैं सच सर मैं कह रहा था आपको कहीं जाना है क्या? मतलब इस वाले करके मतलब। में। 1 मिनट, 2 मिनट। ये, सो विद दिस आई विल कंक्लूड दिस, एंड आई होप आपको कुछ फायदा लगा हो। कुछ भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप इट अप।